Okay, we were discussing about the internal and external shareholders. So corporate shareholders are basically the companies which owns the shares of the other companies. Generally, these are considered as the holding companies. Okay, sometimes holding companies from the perspective that they are holding the majority shares of any other company. ठीक है. These also includes the families और group of friends जो है ना उसमें. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप को फैमिलीज हैं जिन्होंने उन शेयर्स को जो है ना वो परचेज किया हुआ है, जिस लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कोई नूर जो है ग्रुप दैट इज ओन्ड बाय द सैगल फैमिली, तो उन्हीं की सारी जो है ना उसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट है. या ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, मींस वो खुद से जो है ना सारी फैमिली ने तो नहीं किया हुआ, बट उन्हीं के जो है ना जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट मेन होल्ड की है. And external means those investors which could either be individuals, just like any one of us who is making investment in the company, or it could be institutional investment like commercial banks, investment banks, mutual funds, pension funds, who are pooling the funds from the different general public or the people, and they are making investment in the shares of the company. Internal shareholders, these are generally considered as the controlling shareholders. Controlling shareholders means these are the one who is basically taking care of the different activities of the business organization, or they are running the different affairs of the business organization. Majority not a necessity. Sometime ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास majority नहीं है, but still they are managing. ये जो आपके पास PTCL है, that is one of the best example for this. PTCL is owned by Etisalat Group, which are just having 26% of the total shares. So despite of the fact the majority lies with the government having more than 60% of the shares, but controlling जो shareholders हैं वो कौन है? Etisalat Group. So these are the ones who are managing the affairs of the business organization. जी. सुभाष जी दस जी. Okay, ji. Is it clear, ji? Controlling shareholders and majority not a necessity. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ji. Yes, sir. Seen in the best means generally board members do not hold more than a quarter of the shares, company shares. ये जनरली जो सिचुएशन है जो है वो वेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं दे मे नॉट बी द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो इतिसलात वाली ऑप्शन है जो सिचुएशन है बीटीसीएल, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स. And situation in Pakistan is this, that most companies are controlled by families and close groups who nominate the board members जो है ना उसमें. तो यहाँ पे तो ज़्यादातर जो है ना वो फैमिलीज ही हैं या फैमिली ओन्ड जो है ना इंस्टीट्यूशंस हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है इलेक्ट भी कर रहे होते हैं. और जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो पॉलिसीज हैं या जो डिसीजंस है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंगली हो रहे होते हैं. देन there are external shareholders. External shareholders generally they are not on the board. जैसे हमने कहा कि कोई इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, तो उनका कोई कंसर्न नहीं होता कि जी कि बोर्ड की ऑनरशिप कोई हो या ना हो. बट एज फार एज इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न, तो सम टाइम उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर जो है ना वो बोर्ड मेंबर्स के अंदर जो है ना वो होता है. लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर जो है ना बोर्ड में भी एग्जिस्ट करते होंगे. दे लैक द यूनिटी, मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी कॉमन इंटरेस्ट. उस कॉमन इंटरेस्ट के ना होने की वजह से ऑब्वियसली दे डू नॉट यूनाइट, या उनकी यूनिटी के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता. They have lack of interest since they have just made investment in the business organization for earning the profit.
तो depending on the performance or different activities that they are going on, they are least concerned about it. They are only concerned with the profit or the return that they will get. Therefore, they lack the influence. Investment कर दी है, they expect the company is performing better, future prospects भी company के अच्छे हैं, return जो है ना वो हमें मिल जाएगा. तो इससे ज़्यादा जो है ना वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. जब इंटरेस्ट नहीं है तो उनका कोई कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस भी नहीं होता क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती. Then there is another type of the shareholder which are small private shareholders. Small private shareholders includes individuals. आप जो जनरल पब्लिक है उनमें से कोई भी पर्सन है उसने इन्वेस्टमेंट की है. Only interest in the share price change. इनका सिर्फ इंटरेस्ट क्या है कि शेयर प्राइस चेंज हो जाए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डे ट्रेडर्स हैं, दे आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, सम नॉमिनल प्रॉफिट्स ऑन द डेली बेसिस or within a shorter period of time. So let's suppose a person had made investment in the shares of MCB Bank, and later on in the day there is a nominal increase of, let's suppose, 0.50 per share, and they sell those shares to earn the profit. तो अगर for example 1 lakh shares purchase किए हुए थे, 0.50 per share जो है ना प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट टेकिंग करते हुए 50,000 को उन्होंने प्रॉफिट जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर लिया है. No long-term interest, since they are more interested in the short-term profits, so they do not have any long-term interest in the business organization. Only a little interest in the earnings. क्या प्रॉफिट अच्छा होगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. अदरवाइज दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस. दे आर रिएक्टिव बायर्स एंड सेलर्स. व्हाटएवर दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. तो इफ देयर इज अ जो है ना वो रूमर्स इन द मार्केट दैट द शेयर प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, बुलिश ट्रेंड आने वाला है, बुल्स हैं जो कि जो है ना रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बाइंग जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं. एंड सेम लाइक दैट इफ देयर इज अ एक्सपेक्टेशन इन द मार्केट दैट द शेयर प्राइसेस आर गोइंग टू डिक्रीज, तो शेयर प्राइसेस की डिक्रीज होने के बेरिश ट्रेंड के पर्सपेक्टिव में, बियर्स की रूमर्स क्रिएट करने के जो है ना पर्सपेक्टिव में, ये क्या करते हैं, शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं. तो whatever that is going on in the market, based on the market reaction, they also make the investment decision जो है ना. So that's why they are considered as reactive buyers. बिगेस्ट लूजर्स व्हेन थिंग्स गो बैड. आपने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो जितने स्पेकुलेटर्स होते हैं वो जिन्होंने इस एंटिसिपेशन में जो है ना इन्वेस्टमेंट की होती है कि शेयर प्राइस फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगी, वो बेचारे सबसे ज्यादा जो है ना वो लॉस में होते हैं, इन्वेस्टमेंट लूज कर जाते हैं जो है ना उसमें. एंड दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द बोर्ड बिकॉज दे आर अमंगस्ट द इंडिविजुअल्स एंड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो जनरली दे डू नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द डिसीजंस व्हिच आर टेकन इन द बोर्ड. हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी जो है ना आपकी तरफ से? नो सर. ठीक है जी. अच्छा चले ऐसा करते हैं. हाँ जी दानियाल. जी सर. जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है. व्हाट डू मीन बाय दीज रिएक्टिव बायर्स और सेलर्स? रिएक्टिव बायर्स सर जो रिएक्ट करते होंगे मतलब शेयर्स के सेल के साथ. अच्छा चले मानूर आप बताएंगे. मानूर फातिमा, कैन यू टेल मी दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिव बायर्स एंड सेलर्स? मानूर. सर मे आई? जी जी प्लीज. सर रिएक्टिव बायर्स वो होते हैं जो जब उनको पता चलता है कि शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है तो वो उसको जो है ना परचेज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो मार्केट स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं. अगर मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन है कि शेयर प्राइस डिक्रीज होने वाली है तो वो सेल करना शुरू कर देंगे. मार्केट में स्पेकुलेशन है कि शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने लगे हैं तो उसको बाय जो है ना वो करना शुरू करते हैं. सर जी ये भी होता है ना सर. जी जी. सर ज्यादातर रिएक्टिव बायर्स की जो मेन बैक एंड पे है ना वो ये होता है कि वो मार्केट को जो डोमिनेट कर रहे होते हैं. जी सही है, ठीक है जी. रियाज साहब इन्हीं की सर. जी सर, मेरे ख्याल में रिएक्टिव बायर्स दो तरह के होते हैं सर. जी जी. One, those who carry out technical analysis and they see the trend. Once they evaluate the trend,
सही If share is rising, so they buy it. बिल्कुल सही They है see relevant strength of the share. They see rising price. मुख्तलिफ उसके प्रोसीजर्स हैं एनालाइज करने के, जी तो वो बिल्कुल जब सही देखते हैं फ्लाम शेयर अभी लाइकली टू गो अप, तो वो उसको बाय कर लेते हैं लो प्राइस पे, और जब अच्छी प्राइस पे आता है तो उसको सेल कर देते हैं. दे बिल्कुल आर सही आल्सो कॉल्ड स्विंग ट्रेडर्स. और एक तो डेली ट्रेडर्स हैं, दूसरा स्विंग ट्रेडर्स हैं. ये आदमी रिएक्टिव होते हैं. जी सही जो है अपने लूजर, मेरे ख्याल में लूजर ज्यादा वो होते हैं सर, who develop unnecessary attachment with the share. If share is falling, just leave it. But they don't leave it. They just hang on कि ठीक है शेयर कल बढ़ेगा कल बढ़ेगा. Share सही doesn't increase like that. वो बड़े प्लेयर जब निकल जाते हैं तो it has to fall. और they become the loser due to their undue attachment with the share, I think. बिल्कुल सही तो है लूजर रिएक्टिव, एक एक तो वो हैं जो अपना एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल जी एनालिसिस. जी दूसरा वो जो हेयर से पे शेयर खरीदते हैं, जब किसी ने कहा फलां शेयर ऊपर जा रहा है, वो जी बेचारे खरीद लेते हैं, उसके बिल्कुल बाद इंतजार में रहते हैं, अमूमन दे आर लूजर. थैंक बिल्कुल यू वो सर. वही स्पेकुलेशन का पर्सपेक्टिव है ना कि जब मार्केट स्पेकुलेशंस हैं, मार्केट के अंदर रूमर्स हैं कि जी कि ये प्राइस एप्रिसिएशन या प्राइस जो है ना वो डिक्रीज होने लगी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं. और ये पर्सपेक्टिव भी है कि मार्केट जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जो है ना डिफरेंट एनालिसिस जो है ना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द शेयर प्राइसेस, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो रिएक्ट करते हैं. जनरली जो ये फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर रहे होते हैं उनके लूजर होने के चांसेस जो है ना वो कम होते हैं, क्योंकि वो बैक एंड पे जो फैक्चुअल डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं. ऑल्दो फ्यूचर तो अनसर्टेन, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट स्टिल दे आर बेटर ऑफ एज कंपेयर टू द वंस हु ओनली रिलाई ऑन द स्पेकुलेशन, जो सिर्फ स्पेकुलेशन पे बैठे होते हैं और उस जो है ना वो क्या लें कि अनवैलिडेटेड इंफॉर्मेशन जो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही होती है उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं, जो सम टाइम उनको प्रॉब्लम में जो है ना वो ले जाता है जो है ना उसमें. ठीक है जी. देन देयर आर लार्ज शेयर होल्डर्स. These could be individuals but may be acting through the trust, private limited companies or the etc. जो है ना उसमें. तो ऐसा भी है कि देयर कुड बी इंडिविजुअल्स हु आर मेकिंग मिलियंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स और बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी, or they are the private limited companies who are making investments in the stock market. They have long term interest in the company as compared to the short term investors or small investors जो है ना. So generally they tend to invest for a longer period of time. Since they are going to make investment for a longer period of time, so definitely they have interest in the company. They want to have a better जो है ना representation of the company. They want to see that the company is performing better so that their future stakes can be fulfilled or taken care of. And then they may provide bulk of executive directors. These are the ones who have some interest in the company, since other are least concerned or bothered about the company, so they can have more executive directors in place in the corporations. And in Pakistan these people are focus of the corporate governance endeavor जो है ना. So if they act properly, these large private shareholders, a lot of the things that are going on within the company in context of corporate governance can be controlled. अगर अच्छे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज हो सकता है जो है ना उसमें. देन देयर आर कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स जो है उसमें. अच्छा जी, अतिया मुझे बताएंगे ये कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स, सॉरी इसमें ये होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? Sorry, sir, no idea. ओके, वो आइडिया नहीं है तो चलें इस तरह से कर लेते हैं. फिर दोस्त एक मिनट काइंडली वेट कीजिएगा. लेट मी आस्क सम पीपल जो वैसे जनरली जो है ना वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते जो है ना उसमें. जी राना बिलाल. Sir, the holding companies, I have heard for the very first time, but I can make a wild guess. The companies which give their shares down to the distributors and to the private shareholders, making their shares in such a way that major part is being held by the company itself, and just 25% is being distributed to the shareholders.
सर होल्डिंग कंपनीज जो है वो होल्ड करती हैं स्टॉक को अदर कंपनीज में। इनका काम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता कि गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करें, बल्कि ये सिर्फ इनका काम ये है कि कोई स्टॉक है उसको होल्ड कर रही हैं बाकी कंपनीज में। अच्छा तो सर होल्डिंग कंपनीज बेसिकली ये होती हैं। अच्छा जी शफक ओके सर, मैं बताऊं? जी बताएं। सर होल्डिंग कंपनीज एक बेसिकली क्या है, पेरेंट कंपनी है जिनको मतलब जो कंपनी के अदर स्टॉक्स होल्ड करते हैं। जैसे डिज्नी है वो जैसे फॉक्स के कंपनी मतलब फॉक्स की ऑन शेयर्स ऑन करते हैं। इससे और भी कंपनीज है, मतलब होल्डिंग कंपनी बेसिकली पेरेंट कंपनी होते हैं जो आगे कंपनीज को स्टॉक होल्ड करती हैं। जी शफक आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं भी यही कह रही थी कि होल्डिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में डील नहीं करती, बल्कि ये पेरेंट कंपनी होती है और बाकी जो बिजनेसेस होते हैं उनको ओवरटेक करके लाइक सब्सिडरीज होती हैं इनकी फर्दर, और इसलिए वो होल्डिंग कंपनीज होती हैं। जी आयशा। सर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि होल्डिंग कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है। होल्डिंग कंपनी बेसिकली किसी भी कंपनी के 51% शेयर अगर किसी और कंपनी ने जो है वो लिए हुए हैं तो वो होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। A company that is holding the shares of any other company is considered as a holding company। और जिस कंपनी के उन्होंने majority shares hold किए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको सब्सिडरी। उसको ठीक है, वेरी राइट, उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जी के मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी होल्डिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होल्डिंग हो सकती है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे होल्डिंग का पार्ट ये है कि दे आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, जो है ना उसमें नेचर ऑफ बिजनेस की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। तो कंपनी दैट होल्ड्स द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी, and the company whose shares have been acquired is considered as its subsidiary. So likewise, there could be multinational, there could be companies which are operating in different other countries or which are operating across the globe. They can also make investment in the shares of the other company जो है ना, ठीक है। तो multinationals भी investments करती हैं shares के अंदर। इसी तरह different groups जो हैं, जो consortiums हैं, they can make investments in the stock market, they can purchase the shares of the other companies. And there are certain characteristics of the corporate shareholders, which includes number one, generally they are well organized and managed. Obviously, as a corporation, so institutions are better managed as compared to the individuals. They have a corporate culture, doing things in a systematic way. They have the expertise, they have the skill set, they have the people who are performing different tasks systematically. So they are better governed, they are having a better culture. In Pakistan, group culture has not taken फर्म रूट्स जो है ना उसमें, लेकिन ये जो एक कंसोर्शियम वाला पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज वाला जो पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक्टिव नहीं है। दिस सेशन इज जस्ट अबाउट टू एक्सपायर।